Hello students, in continuation of previous lectures, today we will solve exercise 10th F of Selena Concise Mathematics. It is based on arithmetic progression and it is a miscellaneous exercise. So let's start our exercise. Question number 1. The sixth term of an AP is 16 and the 14th term is 32. Determine the 36th term. Two terms are given. So make simultaneous equation in A and D. Sixth term is 16 and 14th term is 32. Sixth term will be a plus 5d. Tn का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे a plus n minus 1 into d. n के प्लेस पर 6 पुट करेंगे. दिस इज 6 minus 1 5d. Equation number 1 and 14th term will be a plus 13d. This is our second equation. Now solve these equations for a and d. D is equal to 2. Now substitute the value of D either in equation 1 or in equation 2. D is 6. Now we can find 36th term. A plus n minus 1 into D. Values put कर दीजिए. A is 6, n is 36 and D is 2. 36th term is 76. Second question, if the third term and ninth term of AP be 4 and minus 8 respectively, find which term is 0. Third term is 4 and the ninth term is minus 8. First of all, we are making simultaneous equations in A and D. Third term will be a plus 2d and the ninth term will be a plus 8d. Now we are solving these two equations for A and D. D is equal to minus 2. Substituting this value in equation 1 is 8. Now we have to find which term is 0. Let nth term be 0. It means Tn is equal to 0 and we have to find this n. A की वैल्यू 8 पुट करिए, D की वैल्यू -2. n is equal to 5 means fifth term of given AP will be 0. Question number 3. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. There are 50 terms and the last term is 106. It means it is 50th term. Find the 29th term of AP. Third term is 12 and last term means 50th term is 106. Third term means a plus 2d is equal to 12, equation number 1, and 50th term a plus 49d is equal to 106. This is second equation. D is equal to 2. Substituting this value in equation 1. A is equal to 8. Now we have to find 29th term. A, D और N की वैल्यू पुट कर दीजिए. Twenty-ninth term is 64. Question number 4. Find the arithmetic mean of the following. First part, if A and B are two numbers and we have to find arithmetic mean of these numbers, then arithmetic mean will be equal to A plus B upon 2.
So arithmetic mean of -5 and 41 will be equal to -5 plus 41 divided by 2 means 18. Now second part. Arithmetic mean of this and this, we are adding these two numbers and then we will divide by 2. Arithmetic mean is 3x. Third part. Arithmetic mean of m plus n whole square and m minus n whole square will be equal to, add these two and then divide by 2. whole square से ओपन कर रहे हैं. Arithmetic mean is m square plus n square. Find the sum of first 10 terms of this AP. Looking this AP, first term A is 4 and the common difference D is 2. So Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. S10 will be equal to n is 10, a is 4 and D is 2. Answer is 130. Question number 6. Find the sum of first 20 terms of an AP whose first term is 3 and the last term is 57. First term is 3 and the last term is 57 and number of terms are 20. Last term 57 है और number of terms 20 है, it means this will be 20th term. Now we have to find sum of 20 terms. Because a and l is known, you can apply the formula Sn is equal to n by 2a plus l. Answer is 600. इन केस ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो सेकेंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, एक अल्टरनेट मेथड है. बिकॉज T20 इज 57 एंड फर्स्ट टर्म A इज 3, you can find the value of D. 20th term will be A plus 19D. A is 3. D is 54 by 19. Now we have to find 20th term, sum of 20 terms, that is n by 2, 2a plus n minus 1 into D. Put the given values. N is 20, a is 3, n minus 1 19 and D is 54 by 19. Again it is equal to 600. You can do this question by first method or by second method. Second method is slightly long. Question number 7. How many terms of this series when added together will give 45? Let the n terms of this series when added will give 45. It means Sn is 45 and we have to find this n. Look at the AP. First term A is 18 and the common difference is -3. Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई.
3n square minus 39n plus 90 is equal to 0. It is a quadratic equation in n. First of all, we are dividing this equation by 3. Now solve this quadratic equation for n. We have to find two factors of 30 whose sum is 13. Three and 10. And the required factors are n minus 3 and n minus 10. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर की है. आप प्लेलिस्ट में वाव वीडियो के नाम से एक फोल्डर है, उसमें इस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं और इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप बड़ी से बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं. इफ दिस फैक्टर इज 0 देन n इज इक्वल टू 3 एंड इफ दिस इज 0 देन n इज इक्वल टू 10. मीन्स अगर आप 3 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आपको सम 45 मिलेगा और 10 टर्म्स को ऐड करेंगे देन द सम विल बी ऑल्सो 45. कैसे होगा? बिकॉज d इज नेगेटिव मीन्स टर्म्स इस AP में रिड्यूस हो रही हैं और एक ऐसे स्टेज आएगी जब ये रिड्यूस होते होते नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी और जैसे ही नेगेटिव में कन्वर्ट होना शुरू होंगी तो सम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. इसीलिए 3 टर्म्स को ऐड करने पर भी सम 45 मिल रहा है और 10 टर्म्स को ऐड करने पर भी 45 मिल रहा है बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव टर्म्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 8 माइनस 5n. हमें इस क्वेश्चन में nth टर्म जनरल टर्म की फॉर्म में गिवन है. आप इसमें n के प्लेस पर 1 पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. 10th टर्म n के प्लेस पर 10 पुट कर दीजिए. शो दैट दिस सीक्वेंस इज एन AP. अब कैसे शो करेंगे आप देखिए. इसके लिए आपको AP की बेसिक डेफिनेशन पर जाना होगा. अगर हम AP की बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो एक ऐसी सीरीज जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो सीरीज AP होती है. मीन्स आपको ये प्रूव करना होगा कि इसकी हम कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स कंसीडर कर लें तो वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, देन इट विल बी AP. अब ये कैसे प्रूव करेंगे? आप देखिए nth टर्म हमें गिवन है. सपोज हम इसमें n प्लस 1th टर्म ले लें. n प्लस 1th टर्म हमें कैसे मिलेगी कि tn की वैल्यू में हम n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 से. अब देखिए ये 2 कॉन्जुगेटिव टर्म है और जनरल टर्म है, मीन्स आपको एक जनरल रिजल्ट मिलेगा. इनका अगर हम डिफरेंस देखें tn प्लस 1 में से tn को माइनस कर दें डिफरेंस इज -5. अब आप इस डिफरेंस को जरा देखिए. ये डिफरेंस कांस्टेंट है, -5 कांस्टेंट है, इसमें कहीं पर भी n नहीं आ रहा है. अगर इसके डिफरेंस में n आता तो n वेरी करता. तो यहीं से प्रूव हो गया बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट फ्री फ्रॉम n. देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन AP. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है. हमें इसमें nth टर्म गिवन थी. आप इसमें कुछ टर्म्स फाइंड आउट करिए. t1 फाइंड आउट करिए n के प्लेस पर 1 पुट करके. t2 फाइंड आउट कीजिए n के प्लेस पर 2 पुट करके. t3 फाइंड आउट कीजिए n के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए. कुछ और टर्म्स फाइंड आउट कर लीजिए. अब आप इनका डिफरेंस देखिए जरा. t2 माइनस t1 इज इक्वल टू है -5. अगेन t3 माइनस t2 देखिए. Look at this, difference is common since
and so on. Therefore, the given series is an AP. Number 9th, find the general term and 23rd term of this sequence. Sequence given है means first term हमें given है 3. Common difference is, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि ये AP है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए आइदर दिस इज AP और नॉट. तो देखिए हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, दैट इज -2. अब जरा इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दैट इज इक्वल टू -2, और इनका भी डिफरेंस देखिए, ये भी -2 है, मीन्स AP है. नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल टर्म, nth टर्म. Five minus 2, and this is the general term of the given AP. Now we have to find 23rd term. तो 23rd term के लिए आप सिंपली जनरल टर्म में n के प्लेस पर 23 पुट कर दीजिए, -41. आप इसको Tn के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 78? First term is 3 and the difference is 13 minus 8 is equal to 8 minus 3 is equal to 5. Let nth term be 78. It means Tn is 78 and we have to find this n. फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए. n is equal to 16 means 16th term of the given series will be 78. Question number 11th, is -50 a term of this series? अब देखिए किसी भी सीरीज को अगर हम कंसीडर करते हैं, 11 is its first term, 8 is its second term, 5 is its third term and 2 is its फोर्थ टर्म, और आगे भी ऐसे ही चलेंगी. इससे नेक्स्ट होगी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. कहीं पर भी 1.5th टर्म हमें नहीं मिलेगा, मीन्स n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में से ही हो सकती है. तो हम ये लेट कर लेते हैं कि -150 इज इट्स nth टर्म. अब अगर इस सीरीज का टर्म होगा तो आपको नेचुरल n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर मिलेगी, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलती है, इसका मतलब -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज. A is 11, D is -3. Let nth term be -150. चलिए अब n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. n is equal to 54.6. n does not belongs to natural number, so -150 is not a term of given series. Question number 12, how many two-digit numbers are divisible by 3? 2 digits नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और लास्ट नंबर है 2 digit 99, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन गिवन है, वी हैव टू टेक दोज नंबर्स हु आर डिविजिबल बाय 3. तो देखिए इस वाली रेंज में से कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे. फर्स्ट नंबर होगा 12,
उससे नेक्स्ट होगा 15, देन 18 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट नंबर विल बी 99. 99 इज डिविजिबल बाय 3. सो दिस इज आवर सीरीज जिसके हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 3 है क्योंकि 3 से डिविजिबल नंबर्स हम ले रहे हैं, और लेट nth term is 99, then we have to find this n. Tn का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए और n की वैल्यू फाइंड आउट करिए. n इज इक्वल टू 30 मीन्स टोटल 30 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के जो 3 से डिविजिबल होंगे. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12. नाउ वी हैव टू टेक मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स जो 4 से डिविजिबल हों. तो देखिए क्या 10 4 से डिविजिबल है? नो. मीन्स हमारी जो सीरीज है वो 10 से स्टार्ट नहीं होगी. फर्स्ट नंबर देखिए इस रेंज में जो 4 से डिविजिबल होगा दैट इज 12, और इससे नेक्स्ट होगा 16 एंड इससे नेक्स्ट 20 एंड सो ऑन. अब देखिए क्या 250 4 से डिविजिबल है? ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है. तो अब आप देखिए कि लास्ट नंबर इस रेंज में कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा. उसके लिए आप 250 को 4 से डिवाइड करिए और देखिए हमें चलना है लेफ्ट साइड में, मीन्स 250 से लेस वाला नंबर लेना है. रिमाइंडर इज 2. अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये 4 से डिविजिबल हो जाता, मीन्स ये 2 एक्स्ट्रा है. तो इस एक्स्ट्रा 2 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए. लास्ट नंबर ऑफ दिस रेंज विच विल बी डिविजिबल बाई 4 विल बी 248. तो अब ये सीरीज हमारे पास है और इस सीरीज में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. a is 12, d is 4 and suppose it is nth term, then tn is 248 and this is the last term, so we have to find this n. tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. n is equal to 60 मीन्स टोटल 60 नंबर्स हैं इस सीरीज में. टोटल 60 नंबर्स हैं इस रेंज में जो 4 के मल्टीपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24. 4th टर्म और 8th टर्म को अगर हम ऐड करें तो आंसर है 24. एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44. और अगर हम 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करते हैं देन द आंसर इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स मीन्स AP हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए इक्वेशन बनाते हैं. 4th टर्म विल बी a प्लस 3d, 8th टर्म विल बी a प्लस 7d मीन्स 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24. 2 से डिवाइड कर दें. a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन हमें सेकेंड कंडीशन से मिलेगी. 6th टर्म विल बी a प्लस 5d एंड 10th टर्म a प्लस 9d. अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हैं. a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए फॉर a एंड d. a इज इक्वल टू 5. d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में. a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. a is minus 17. We have to determine first 3 term. First term will be a, second term will be a plus d and third term will be a plus 2d. Values put कर दीजिए.
आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।